I thought I must preach. I have a message, but I'm not going to preach. I'm going to tell a few stories. And I believe that these stories are for you. I believe that it is a prophetical message. Can somebody lift this up and keep it on this pulpit, this podium? India is a big country. I'm not going to tell a joke. Always I used to open my message with a joke, but not today. India is a big country with 1.22 billion people. The population of India is added by 18 million every year. That is the total population of Australia. So Australia is added to the population of India every year. It is believed that St. Thomas, the apostle of the Lord Jesus Christ, he came here in the year 52, AD 52. Can a Malayali tell me where did he come first? Which place he landed? Huh? Mylapore? No. Huh? Huh? Somebody said Kodungallur? Good, thank you. Kodungallur. He died in Mylapore. He was martyred in Mylapore. He came to Kodungallur or Palayur. So there is a confusion whether he came to Kodungallur or Palayur. Have you visited Kodungallur or Palayur? You must, those who are from India, try to go there. I went there several times. Even 2 years back I went there. I did not go on a pilgrimage, don't misunderstand me. I go there to cry and pray. I asked God to do once again what he did through St. Thomas. The story goes like this. He came in a boat, he tied the boat on a coconut tree. That is the land of coconuts. That is the meaning of Kerala, the land of Kera, the land of coconuts. So he tied the boat on a coconut tree, then he went to, he looked around and he saw a building on top of a hill. And he went there and started to shout, anybody here? You are going to do it? You know Urdu? If you make a mistake, I will catch you. Because I know Urdu too. No. Sure. St. Thomas came to Kerala in the year 52. Saint Thomas जो है वो केरला में आए 1952 में. It's okay? Okay. You have to come here. You come here. Bring the podium over here. It's okay? Good, good, good. No, they are directing. Is it okay? Okay. And he came in a boat. वो एक कश्ती में आए. He tied the boat on a coconut tree. उसने जो है वो कोकोनट ट्री की जो है वो कश्ती बनाई. And he looked around and he saw a building on top of a hill. उन्होंने जो है वो बिल्डिंग देखी पहाड़ों के ऊपर से. And then he went over there and shouted, anybody here? और वो फिर उन पहाड़ों के ऊपर के वहाँ पे जाके चिल्लाए कि कोई यहाँ पे है. There was nobody. वहाँ पे कोई भी नहीं था. He looked around. वो उन्होंने चारों तरफ देखा. He saw in the valley a pond. उन्होंने वादी में एक होज देखा पानी का. पानी का तालाब. पॉन्ड. Okay. And he went down there. और वो वहाँ पे गए. He saw 4 people taking a bath. उन्होंने वहाँ पे देखा कि 4 लोग वहाँ पे जो है नहा रहे हैं. And they were, after finishing the bath, they took a handful of water and threw into the sky. और नहाने के बाद उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया और उसे ऊपर उछालना शुरू किया. So Thomas asked them, what are you doing? So थॉमस ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो. They said, we are the priests of that temple you see there. उन्होंने कहा कि हमें ये सिखाया गया है कि जो मंदिर जो है यहाँ पे है उस उधर से. हम उधर का पुजारी है. And Thomas said, then why you are taking a bath?
तो थॉमस ने उनसे कहा कि फिर आप नहा क्यों रहे हो They explained that we were purifying our body to go to the temple and worship. उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे इसलिए नहा रहे हैं ताकि हम अपने आप को पाक कर सकें। Why you were throwing the water into the sky? तो उसने पूछा कि आप जो है आसमान के ऊपर जो है पानी क्यों फेंक रहे हैं? And they said we worship the sun god. और उन्होंने जवाब दिया कि हम सूरज का जो खुदा है उसकी पूजा कर रहे हैं And we were offering water to the sun god. और हम जो सूरज को पानी जो है वो चढ़ा रहे हैं, बेन चढ़ा रहे हैं। Thomas asked a question, did your God accept that water? तो थॉमस ने उनसे पूछा कि क्या आपका खुदा ये पानी जो है इसको कबूल कर रहा है? They said, of course, the sun god accepted the water. उन्होंने कहा यकीनन खुदा जो है वो ये कबूल कर रहा है। Thomas said, but I saw the water coming back. लेकिन थॉमस ने उनसे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि पानी वापस आ रहा है। If your God accepted the water, why it came back? उसने कहा कि अगर आपका खुदा जो है वो पानी कबूल कर रहा है तो ये पानी नीचे वापस क्यों आ रहा है? Thomas preached about Jesus Christ. और फिर थॉमस ने उनको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया। He said, if I will give something to my Jesus and he will accept it, it will not come back. और उसने ये उन्हें सिखाया कि अगर मैं अपने जीसस क्राइस्ट की जो है वो प्रस्तुत करूंगा और उसे कोई चीज जो है वो दूंगा तो वो कभी भी उसे वापस नहीं करेगा। They said, we would like to see that. उन्होंने कहा कि हम ये चीज देखना चाहेंगे। Indians are very interested to see miracles. हाँ, जो इंडियन लोग हैं वो मौजज़ात देखने के लिए बहुत ज्यादा मासूम हैं। They said, so Thomas went into the river, into that pond. तो थॉमस जो है वो उस हौज के अंदर, उस तालाब के अंदर गया And he took a handful of water, और उसने हाथ में पानी लिया threw into the sky और उसने उसको ऊपर उछाला and prayed. और दुआ की। To their amazement, the water stayed on the sky. तो उनके जो मुताबिक है पानी जो है वो हवा में ठहरा रहा And they were the water was shining like jewels. और वो जो पानी है वो इस मोतियों की तरह चमक रहा था। All the 4 Brahmins were baptized at the same time. और वो चारों ब्राह्मण जो है उनको वहाँ पे बपतिस्मा दिया गया और उन्होंने जीसस को कबूल किया। In the olden days, where the head goes, the tail follows. पुराने दिनों में जहाँ सिर जाता है पूंछ भी चले जाता है. So when they became Christians, the whole village became Christians. जहाँ पे जिस तरह सर जाता है वहाँ पे पूंछ भी जाती है। जिस तरह ये पुजारी लोग जब ये गए तो इनके जो बाकी लोग थे उन्होंने भी उसी साइड पे जाना था। And they converted the temple into a church. और उन्होंने उस मंदिर को जो है चर्च में तब्दील कर दिया। They had Hindu idols in that temple. उनके अंदर हिंदूज के जो बुत थे, मूर्तियां थी, वो थी। They took it and kept in the corner of the church building. और उन्होंने उनको उठा के चर्च के एक कोने में रख दिया। As a museum. और म्यूजियम के तौर पे। You can go there. आप वहाँ पे जा सकते हैं। You can see the pond. आप वो तालाब वहाँ पे देख सकते हैं। You can take a shower. You can take a bath also in that pond. आप उस तालाब में जो है नहा भी सकते हैं। And you can see the temple, the church building nearby. और आप वो चर्च की बिल्डिंग जो है वो भी करीब की जो देख सकते हैं। Till 50 years back, it was 100% Christian town. 50 years back. Till 50 years back. 50 साल पहले 100% जो है वो लोग जो है वो हिंदू थे। Because when Thomas baptized 4 people, everybody became a Christian. क्योंकि थॉमस ने वहाँ पे जाके बपतिस्मा दिया 4 लोगों को, इसलिए अब वहाँ पे जो है लोग जो है वो क्रिश्चियन थे। He planted 7.5 churches. उसने 7.5 उन्होंने 7.5 चर्चेस जो है वहाँ पे प्लान किए। Don't ask me what is half church. I don't know. ये नहीं पूछे कि वो हाफ चर्च क्या, आधा चर्च क्या है। 7 large churches, 1 small church. 7 जो है वो बड़े चर्चेस हैं और एक छोटा चर्च है। But there was a St. Thomas, then he moved to the next state. लेकिन सेंट थॉमस जो है वो उस स्टेट में गए। He went to Mylapore. वो मलयापुर में गए। He was martyred there. और वो वहाँ पे वो मार्टियर थे। He was not killed for his faith. वो उनको उनके मजहब की वजह से मारा नहीं गया था। But he was killed by the Aborigine people, the tribal people who did not understand who this white man is. लेकिन उनको जो है वो कबाइली इलाकों के लोगों ने जो है वो मारा था, जिनको नहीं पता था कि ये सफेद इंसान जो है But कौन है। he was a martyr. लेकिन वो जो है एक मार्टियर था। Something was wrong with the Church of Kerala. Something was wrong.
कुछ केरला के चर्चेस में कुछ जो है वो गलत था। We never evangelized our neighbor. हम जो है हमने अपने जो है वो मुनादी नहीं की। We did not go even to our next village. हम यहाँ तक के दूसरे गांव तक भी नहीं गए। We were happy we are saved. हम बस इस चीज में खुश थे कि हम निजात याफ्ता हैं। Centuries passed. सदियां जो है गुजर गई। Then some missionaries came from Antioch. और उसके बाद जो है कुछ मिशनरी जो है वहाँ पे आए। And Antiochia से आया है. And then they came from other countries. और कुछ जो है वो दूसरे ममालिक में से आए। But we were not still evangelizing. लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे मुनादी नहीं की। Then a man from England came. और फिर एक बरतानिया से एक आदमी आया। About 200 years back. तकरीबन 200 साल पहले। His name is William Carey. और उसका नाम विलियम कैरी था। He came to Calcutta. और वो कलकत्ता में आया। He preached the gospel. उसने मुनादी की, कलाम की मुनादी की। But he was not very successful. लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ। He could baptize only 5 people. वो सिर्फ 5 लोगों को बपतिस्मा देने में But कामयाब he हुआ। became the father of modern missions. लेकिन वो मॉडर्न मिशन जो है उसका बाप जो है वो बना। Hundreds of missionaries came after him. और उसके बाद जो है सैकड़ों 100 के लिहाज से जो है मिशनरी वहाँ पे आए। From Europe, यूरोप से, New Zealand, न्यूजीलैंड से, Australia, ऑस्ट्रेलिया America, Canada. अमेरिका और कनाडा से। They suffered in India. और उन्होंने इंडिया में जो है तकलीफें बर्दाश्त की। But they could not baptize even, nobody could baptize even 10 people. लेकिन वो तकरीबन 10 लोगों को भी बैप्टाइज नहीं कर सके। Now let me go to the second part. अब मैं जो है दूसरे हिस्से की तरफ जाऊंगा। India can be divided into 3 parts. India can be divided into 3 इंडिया parts. को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। South India, साउथ इंडिया, North India, नॉर्थ इंडिया Northeast India. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। At that time, North India was included India and Pakistan. इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया जो है वो पहले पाकिस्तान के साथ जो है वो शामिल था। पाकिस्तान South India was evangelized because of St. Thomas. साउथ इंडिया जो है वहाँ पे सेंट थॉमस की वजह से मुनादी की गई। There are 7 states in Northeast India. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तकरीबन 7 स्टेट ऐसी हैं। They don't look like Indians. वो इंडियंस की तरह नहीं लगते। They are not brownish. They are not. वो जो है वो ब्राउन नहीं है। They are Chinese. वो चमकीले। No, Chinese. चाइनीज। They are Chinese. वो चाइनीज है। They look like Mongolians. वो मंगोलियंस की तरह लगते हैं। So there are 7 states of Mongolians here. सो यहाँ पे 7 स्टेट्स ऐसी हैं जो मंगोलियंस किस्म के लोग हैं। 200 years back, nobody could go there. 200 साल पहले वहाँ पे, अब से 200 साल पहले वहाँ पे कोई नहीं जा सकता If they था। will find a stranger, that person will be killed. अगर वो किसी भी अनजान आदमी को, इंसान को देखते थे तो वो उसे मार देते थे। Let me talk about a state called Nagaland. Nagaland. मैं आपको नागालैंड जो है उस स्टेट के बारे में कुछ बताऊंगा। They were head hunters. सिर काटने वाला था. और वो जो है सर काटने वाले थे। If they will find a stranger from the next village, he will be beheaded. अगर वो अपने दूसरे गांव के जो लोग हैं उनमें से भी किसी को देख लेते थे तो उसका सर काट देते थे। They will hang their heads of their enemies around their house. वो अपने दुश्मनों के हाथ, सर जो हैं वो अपने घरों के इर्द गिर्द काट के जो है वो लगा दिया। So when England was ruling India, they made a law that nobody must go to Nagaland. When England was ruling India, they made a law that nobody should go to Nagaland. जब इंग्लैंड जो है वो इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रहा था तो उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि वो नागालैंड जो है इसके अंदर जाए। Even today, if I have to go there, I have to get a visa. अगर यहाँ तक कि अगर आज भी मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है तो मुझे Visa लेना पड़ेगा. वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा। So it was the British government made that law. और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ये लॉ मंजूर किया। At that time, about 120 years back, somebody went there. और उसी दौरान जो है तकरीबन 120 साल पहले कोई वहाँ पे गया। The American Baptist missionaries. अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी वहाँ पे गए। They were killed. उन्हें मारा भी गया। They died because of sickness. वो बीमारी की वजह से मरे भी। But more missionaries went. लेकिन कुछ और मिशनरीज जो हैं वो वहाँ They also died. वो भी वहाँ पे मरे। But more missionaries went.
लेकिन और मिशनरी वहाँ पे गए As a result, today Nagaland is 97% Christians. और इसके नतीजे में नागालैंड जो है वो आज 97% जो है वो क्रिश्चियन है। I wish it was an Indian missionary who went, but it was not Indian missionaries, it was American missionaries. मेरी ये ख्वाहिश है कि वहाँ पे कुछ इंडियन मिशनरी होते लेकिन इंडियन मिशनरी वहाँ पे नहीं थे, दूसरे। There is another state called Mizoram. 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 मिजोरम, They are also Chinese people. ये भी जो है चाइनीज लोग हैं They were also headhunters. और उनका वो भी जो है वो सर काटने वाले लोग थे। There, the Presbyterian Americans went there. वो प्रेस्बिटेरियन अमेरिकन मिशन के प्रेस्बिटेरियन जो है They preached, but their result was not very good. वो प्रीच मुनादी करते थे लेकिन उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। About only 200 or 300 people came to the Lord. सिर्फ 200 या 300 के करीब लोग जो हैं वो खुदा की तरफ लागे They were very discouraged. और वो उनकी बहुत हौसला शिकनी हुई। Then they thought, let us pray. मैं ये कहूँगा कि हम सब उनके लिए No. The believers decided to pray. बिलीवर्स ने ये डिसाइड किया कि उनके लिए दुआ की जाए। They came together, about 300 people. वो तकरीबन 300 के करीब लोग जो है वो इकट्ठे हुए Presbyterians. प्रेस्बिटेरियन They started to pray. और उन्होंने प्रेयर करना शुरू की। The Indians know how to pray. इंडियंस जो हैं वो जानते हैं कि दुआ किस तरह की जाती है। So when they were praying सो जब वो दुआ कर रहे थे for 1 month, 2 months, 3 months, 1 महीना 2 महीना या 3 महीने तक something happened. कुछ हुआ वहाँ They started to shake. और वो ऐसे शेक होना शुरू हुए, हिलना शुरू हुए। Presbyterians don't shake. प्रेस्बिटेरियन लोग जो हैं वो मतलब एक्टिव नहीं है, हिलते नहीं हैं. But these people were shaking. लेकिन ये लोग जो है ये एक्टिव थे, ये हिलते थे। And then they started to sing songs. और फिर उन्होंने जो है वो सॉन्ग्स जो है वो गाने शुरू किए। And then they started to dance. और उसके बाद फिर उन्होंने डांस करना शुरू किया। Presbyterians don't dance. प्रेस्बिटेरियन जो है वो डांस नहीं करते, But these people started to dance. लेकिन ये लोग जो है ये डांस करते थे। The other non-Christians came to see the Christians dancing. और कुछ गैर मसीही लोग जो हैं वो आए ताकि वो देखें कि ये किस तरह से डांस। Indians don't dance. इंडियंस जो है वो डांस नहीं करते, But we like to see the dancing. लेकिन हम जो है ये पसंद करते हैं कि हम डांस देखें। Have you seen the Indian movies? आप इंडियन मूवीज देखते हैं? We don't dance, but we would like to see Shah Rukh Khan dancing. हम डांस नहीं करते लेकिन हम देखते हैं कि शाहरुख खान कैसे डांस करते Pakistanis and Punjabis dance, but these people don't dance. Yeah, I'm telling the truth. So they came, the non-Christians came to see them dancing. सो गैर मसीही लोग आए ताकि वो देखें कि किस तरह से मसीही लोग जो है वो नाचते हैं। Those who came, they fell flat on the ground. जो वहाँ पे आए वो जमीन पर के ऊपर जो है वो गिर गए. They were frozen for 5, 6, 7 hours. वो तकरीबन 5-6 घंटों के लिए जो है वो फ्रोजन हो गए। And then they got up. और उसके बाद वो होश में आए। They also started to dance. और उन्होंने भी डांस करना शुरू So more people came to see them dancing. सो कुछ और लोग आए ताकि वो और डांस देखें। They fell flat on the ground. वो भी इसी तरह जमीन पे गिर गए। After 5, 6 hours they got up. और फिर 5-6 घंटों के बाद वो They उठे started to dance. और उन्होंने भी डांस शुरू किया। It went on like that for 3 months. और इस तरह तकरीबन 3 महीने तक होता रहा। In 3 months' time, 1/3 of the population became Christians. और इस 3 महीने के वक्त में तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है वो Christian क्रिश्चियन हो गया। Then the bishops stood up. और फिर जो है वो बिशप जो है वो खड़े हुए। He said, "No, we are good Christians. We don't dance." उन्होंने कहा कि हम अच्छे मसीही हैं, हम डांस नहीं He करते। stopped the people from doing what the Holy Spirit was inspiring them to do. उन्होंने लोगों को रोकना शुरू किया जो लोग होली पाखरू की हिदायत से जो है डांस करते थे। And the Holy Spirit stopped to work. और पाखरू ने वहाँ पे काम करना बंद किया। After 10 years, they started to pray again. और तकरीबन 10 साल बाद फिर से उन्होंने प्रेयर शुरू The same thing happened. और फिर वही काम हुआ। They were singing, वो they were गाते थे dancing. और डांस करते थे। Non-Christians came to see them dancing. और गैर मसीही लोग आते थे ताकि उनको देखे डांस In करते 3 थे। months' time, the second 1/3 of the population became और Christians. फिर ऐसा हुआ कि तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है वो उधर की आबादी का वो मसीही हो गया। Then the bishop stood up. और फिर बिशप जो है वो उठे They said, "Don't dance. We are good Christians. Don't dance." और उन्होंने फिर यही कहा कि आप डांस नहीं करो, हम बहुत अच्छे मसीही हैं, हम डांस नहीं करते। The bishop asked the people not to do what the Holy Spirit was asking them to do. बिशप ने लोगों से वो कहा
जो के लोग जो है होली स्पिरिट की बात ना माने, and the Holy Spirit stopped to move. और होली स्पिरिट ने पाक रूह ने फिर से वहाँ पे काम करना बंद किया। But after 10 years, लेकिन उसके 10 साल बाद, that was about 70 years back. 70 ये years back. तकरीबन 70 साल पहले की बात है, Finally, they prayed again, आखिरकार उन्होंने फिर से दुआ करना शुरू and की, the same thing happened. और बिल्कुल इसी तरह से हुआ, People were dancing. और लोग जो है वो डांस कर रहे थे, Non-Christians came to see them dancing. और गैर मसीही लोग आते थे वहाँ पे डांस को देखने के They लिए, fell flat on the ground. और वो भी जो है वो जमीन के ऊपर गिरते थे, When they got up after 5-6 hours, they were soundly converted. और जब वो 5-6 घंटे के बाद होश में आते थे, उठते थे, तो वो भी जो है बड़े शौक से कन्वर्ट हो जाते। Today, that is 100% Christian state. और आज वहाँ पे तकरीबन 100% लोग जो हैं वो क्रिश्चियन हैं। So my message to this church is this. आज मैं चर्च से मुझे ये मैसेज है चर्च के लिए। Maybe somebody can write down the message of God for this church today. आप ये लिख सकते हैं कि आज का जो है खुदा की तरफ से चर्च के लिए मैसेज क्या है, Give freedom to the Holy Spirit. कि पाक रूह को जो है वो आज़ादी दो। Don't stop the Holy Spirit. Don't hurt the Spirit. Don't quench the Holy Spirit. पाक रूह को रोको नहीं, पाक रूह को जो है उसको उसके काम में रुकावट नहीं डालो। So let me continue my story. मैं अपनी जो है कहानी उसको जारी रखूंगा। South India is well evangelized. साउथ इंडिया जो है वो पूरे उसमें मुनादी की गई। North East India is well evangelized. नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसमें भी अच्छी तरह से मुनादी की गई। But okay. If you go to the web page, you can see that there are some non-Christians in Mizoram. अगर आप वेब पेज पे जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि Mizoram में. मिजोरम में जो है कुछ गैर मसीही लोग। But I said that it is 100% Christians. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो तकरीबन 100% मसीही हैं। Then why there are non-Christians there? फिर वो क्यों जो है वो गैर मसीही? They are not from Mizoram. They are not from Mizoram. वो Mizoram. मिजोरम से नहीं है, They are from the neighboring states. वो तकरीबन 7 वाली जो स्टेट्स हैं वहाँ से वहाँ पे आए, Or refugees from Bangladesh. जहाँ वो रिफ्यूजी हैं बांग्लादेश से जो गए हुए। There is not even one Mizo who is a non-Christian. वहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है जो गैर मसीही हो। North India was hard. North India was very hard. नॉर्थ इंडिया जो है वो बहुत ही मुश्किल इलाका है। Nobody was coming to the Lord. वहाँ पे कोई भी जो है वो खुदा की तरफ नहीं आता। About 150 years back, a man left South India. He went to Rajasthan as a missionary. तकरीबन 150 साल पहले एक आदमी नॉर्थ राजस्थान से जो है इस इलाके में आया। Rajasthan is like a Bahrain. राजस्थान जो है वो बहरीन की तरह Sand, desert. वहाँ पे रेत और सहरा है। So he went there to preach. सो वो वहाँ पे गया ताकि वहाँ पे मुनादी कर सके। That man, his name is Muthu. He was buried alive in the hot sand. और उस आदमी का नाम जो है मोतू है, और वहाँ पे वो जिंदा जो है वो दफन किया गया था। So it was a hard state. सो ये एक बहुत ही मुश्किल इलाका है। So William Carey, he could baptize only 5 people. सो विलियम कैरी जो है वो सिर्फ 5 लोगों को बैप्टाइज कर In सका। 1947, India got independence from Britain. 1947 में इंडिया ने जो है वो बरतानिया से आज़ादी हासिल की। And then the missionaries had to leave India. और उसके बाद जो है मिशनरीज को इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा। For the first time, the church in India started to think, now the missionaries are going back, who will preach the gospel? सो फर्स्ट टाइम जो है वो मिशनरीज को ये सोचना पड़ा कि कौन जो है यहाँ पे मुनादी करेगा। Indians का चर्च को सोचना लगा है, मिशनरी लोग चला गया, अभी कौन प्रचार करेगा? So first time they realized that they have a responsibility. सो फर्स्ट टाइम उन्होंने इस चीज को जो है वो कबूल किया कि उनकी कुछ जिम्मेदारी है। Now at least 10 missionaries are leaving South India to North India every day. उसके बाद फिर अभी 10 10 कम से कम 10 मिशनरी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जा रहा। एंड ऑल द बाइबल स्कूल्स इन नॉर्थ इंडिया आर फुल विथ बाइबल स्टूडेंट्स। और नॉर्थ इंडिया में तकरीबन जितने भी स्कूल्स हैं वो बाइबल स्टडी से फुल हैं। Even North India is sending our believers to South India to get trained. यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो बिलीवर्स को साउथ इंडिया में भेज रहे हैं वो स्टडी। I was born in South India.
मैं जो है साउथ इंडिया में पैदा हुआ and I ran away from home. और मैं अपने घर से भागा I निकला went to Bombay thinking that I can get a job. बॉम्बे। Bombay. और मैं बॉम्बे में गया ताकि मैं जॉब हासिल कर सकूं। But I could not get a job because I was not much educated. लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि मैं कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। And I studied only up to 10th class. और सिर्फ मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा था। So I joined the army. सो मैंने आर्मी ज्वाइन की। Army gave me more bad habits. और आर्मी ने मुझे बहुत सी बुरी रविशें, बुरी आदतें जो हैं वो दी। I was already a bad boy. मैं पहले ही एक बुरा इंसान था। Now army made me more bad. और आदमी ने मुझे और ज्यादा जो है वो बुरा बना दिया। I was smoking cigarette. मैं सिगरेट पीता था। Then army forced me to smoke 120 cigarettes a day. और फिर आर्मी मुझे फोर्स करती थी कि 120 सिगरेट जो है वो एक दिन में कम से कम पीऊं। And then I started to drink. I never drank before, but after joining the army, I started to drink. और आर्मी को ज्वाइन करने से पहले मैं ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन आर्मी ने मुझे फोर्स किया कि ड्रिंक करो। I will be drinking from 5:30 in the morning to 9:30 in the evening. सो मैं सुबह 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक जो है वो ड्रिंकिंग करता था। I needed money for my bad habits. और मुझे अपनी ज़रूरतें, ये बुरी आदतें पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। From where will I get money? तो मैं पैसा कहाँ से हासिल So करूँ? I started to steal things from the army store and sell it in the black market. सो मैंने जो है आर्मी का जो स्टोर था वहाँ से चीज़ें चोरी करके उनको ब्लैक मार्केट में सेल करना शुरू किया। I was an alcoholic, I was a heavy smoker, I am a thief, I was a bad boy, I was a fighter. सो मैं अब शराबी था और मैं एक सिगरेट पीने वाला था और अभी चोर भी बन गया। And my father decided to straighten me up. और मेरा जो है बाप ने ये फैसला किया कि वो मुझे सीधा करेगा। कैसा सीधा करेगा? How to straighten me up? किस तरह से सीधा करेगा? The people in Kerala, they do like this. जो केरला के लोग हैं वो ये नहीं जानते। Not in Pakistan. पाकिस्तान में ऐसा Only Kerala people will do like this. सिर्फ केरला के लोग इस तरह से करते हैं। If a young man is a bad boy, they will find a praying woman and make them get married. कि अगर कोई इंसान बहुत बुरा है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी सी प्रेयर करने वाली लड़की ढूंढ के उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। She will suffer, but she will pray and probably he will get saved. तो वो औरत जो है वो ये तकलीफें बर्दाश्त करेगी और वो इसके लिए दुआ करेगी और यकीनन जो है ये इंसान जो है वो तब्दील होगा। So when I was in the army, my father wrote me a letter saying that we found a girl for you. सो जब मैं आर्मी में था तो मेरे बाप ने मुझे एक लेटर लिखा कि हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है। I was happy. मैं बहुत खुश था I can get married. कि मेरी शादी हो रही है। I'm a dreamy man. I have beautiful dreams about a wife. मैं ख्वाबों ख्यालों में रहने वाला इंसान हूँ। I knew she will be tall. कि वो एक लंबी लड़की होगी। She will be beautiful. वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। With the hair hanging like this. और वो उसकी लटें यहाँ पे लटक रही होंगी। So I had a dream. ये मेरा ख्वाब था। My father and mother took me to the girl's house. मेरे माँ और बाप वो मुझे औरत के घर, उस लड़की के घर पे लेके गए। And told this is the girl. और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये वो लड़की है। You want me to marry this girl? आप ये चाहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूं? She said, my mother said yes. मेरी माँ ने कहा जी। She was short. वो छोटे कद की थी। If I will stretch her, she will be hardly 5 feet. You want to translate it? Look at her. खींचा जाएगा तो बहुत ज्यादा खींचूंगा तो शायद वो 5 फुट के करीब जो है वो बनेगी। What a punishment. No, I did not bring her over here because I wanted to tell the truth to you. मैं उन्हें आज यहाँ पे इसलिए नहीं लाया ताकि मैं जो सच्ची बात है वो बता सकूं आपको। If she is sitting here, I cannot tell this. अगर वो यहाँ पे बैठती है तो फिर मैं आपको ये बातें नहीं बता सकूंगा। And she was not good looking. और वो I said, no, I don't want to marry her. I don't Want to marry her. translate. My mother said, you have to. Okay. मेरी माँ ने कहा कि आपको इससे शादी करनी पड़ेगी। I was a fool to obey my mother. And we started to fight.
मैं बहुत बेवकूफ़ था कि मैं अपनी माँ की बात मान गया, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। You know, every day. I know people in Bahrain, you don't fight with your spouse. मैं ये जानता हूँ कि बहरीनी आप लोग जो बहरीनी लोग हैं, आप जो है वो अपने जो अपने शरीके याद से जो है वो लड़ाई नहीं करते। Because you eat a lot of ice cream, you are also sweet. But I am eating green pepper. I know how to fight, and I was fighting. And after 5 years of fighting, तकरीबन 5 साल तक जो है इस लड़ाई झगड़े के बाद we are living here, हम जो है Kashmir. कश्मीर में रह रहे थे। I came back from the office. मैं अपने ऑफिस से आया, I'm a soldier typist. मैं टाइपिस्ट था। My wife was standing there with a beautiful smile. मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत स्माइल के साथ जो है वो कुछ बता रही थी। I said, what do you want? मैंने उससे कहा कि तुम क्या चाहती हो? She said, a man from Pakistan has come. उसने कहा कि पाकिस्तान से एक आदमी आया है, His name is Jordan Khan. उसका नाम जॉनथन खान Jordan Khan. जॉर्डन खान है। He was a Muslim. वो एक मुसलमान था Now he's preaching Jesus Christ. और अभी वो मसीह यीशु की मुनादी कर Let रहा us है। go. हम वहाँ पे चलते हैं। I said, no. मैंने कहा नहीं। I hate Christians. I hate Jesus Christ. I hate the Bible. मैंने उससे कहा कि मैं मसीहों से नफरत करता हूँ, मैं मसीह यीशु से नफरत करता हूँ और मैं क्रिश्चियन से नफरत I करता can go anywhere but not to a church. हूँ। मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ लेकिन चर्च में नहीं जाऊँ। She started to cry. वो रोना शुरू हो गई। She went to the bedroom, fell flat on the bed and started to shake the whole world. वो गई बेडरूम के ऊपर सीधी जाके लेट गई और वहां पे जाके उन्होंने रोना शुरू किया और सारे दुनिया हिला रही थी. और सारी दुनिया I said, don't cry, we will go to the church. मैंने उससे कहा कि रो नहीं, हम चलेंगे चर्च। Because the doctor has told me that I have to keep her happy all the time. क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि उसे हर वक्त खुश रखना है, She was going through a depression time. क्योंकि वो जो है बहुत ही डिप्रेशन में से गुजर रही। I think she bribed the doctor to tell me that. मुझे लगता है कि उसने डॉक्टर को रिश्वत दी थी कि ये मुझे ये बात बोले। I said, we will go to the church. और मैंने उसे कहा कि हम चर्च चलेंगे। We went to the church. हम चर्च गए। I heard the salvation message for the first time. मैंने जो नजात का जो मैसेज है वो फर्स्ट टाइम सुना। Next day I went to the office. और अगले दिन मैं ऑफिस गया। When I came back in the evening, my wife said, we are going to the church again. जब मैं अगले दिन घर पे आया तो मेरी वाइफ ने कहा कि हम फिर से चर्च जा रहे हैं। I said, once in a year is enough, not in 1971. मैंने उससे कहा कि साल में एक बार चर्च जाना ओके है, लेकिन 1971 में नहीं जाएंगे. 1971 She started to cry. और उसने रोना शुरू कर I दिया। said, don't cry, we are going to the church. और मैंने उससे कहा कि रो नहीं, हम फिर से चर्च जाएंगे। But then she was wearing clothes. और फिर जो है वो And immediately she said, I have pain in my stomach, I cannot go. Can you go alone, please, alone? She said she had pain in her stomach. उसके जो है पेट में दर्द थी और उसने कहा मैं नहीं जा सकती हूँ, आप अकेला जाओ. मैं नहीं जा सकती हूँ, आप अकेले जाओ। To make her happy, I went alone. उसको खुश करने के लिए मैं अकेला जो है चला I गया। sat at the back bench. और मैं पीछे वाले बेंच पे I बैठा। heard the gospel for the second time. मैंने मैसेज को दूसरी बार सुना And then I was going home. और उसके बाद मैं घर गया। And I was sitting in a military vehicle. Hallelujah. Hallelujah. हेलो। I was sitting in the military vehicle. और मैं जो मिलिट्री की जो गाड़ी है उसमें बैठा था। It was 9:30 p.m. ये तकरीबन 9:30 का टाइम था। I started to think, I'm a sinner. If I die today, I will go to hell. और उस वक्त मैंने ये सोचना शुरू किया कि अगर मैं ये मिस कर दूंगा तो मैं जहन्नुम में जाऊंगा। I was frightened. और मैं बहुत डर गया। And I started to cry. और मैंने रोना शुरू कर I दिया। heard the voice of God in my heart. मैंने अपने दिल में खुदा की आवाज को सुना। I heard the preacher's voice. मैंने प्रीचर की जो मुनाद है उसकी आवाज को सुना। Behold, I stand at the door and knock. If you will open your heart, I will come in. उसने ये कहा था कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, अगर आप दरवाजा खोल दिल के दरवाजे पे खड़ा हूँ, अगर आप दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा। I heard another verse. मैंने एक और आयत सुनी। If you will accept me, if you will accept Jesus Christ, you will become a child of God.
कि अगर आप मसीह को कबूल करोगे तो आप खुदा के बेटे बन जाओगे। I heard another verse. मैंने एक और आयत सुनी, I will give you a new heart, a heart that will not sin. कि मैं तुझे एक नया दिल दूंगा, ऐसा दिल जो कभी बीमार नहीं, I was कभी पाप नहीं करेंगे. जो पाप नहीं करे। I was not afraid of hell. मैं कभी भी जहन्नुम से नहीं डरता था। I was not attracted by heaven. मैं कभी भी मेरी जो हेवन है उसकी तरफ इतनी अटैचमेंट नहीं थी। But I wanted to have a new heart. लेकिन जो है मैं चाहता था कि मेरा दिल जो है वो नया हो। A heart that will not beat my wife, a heart that will not smoke, a heart that will not gamble. I wanted to have a new heart. मैं चाहता था कि मेरा एक नया दिल हो जिसमें मैं अपनी बीवी के साथ ना लड़ूं, मैं सिगरेट ना पीऊं, मैं शराब ना करूं, शराब ना पीऊं। I accepted Jesus Christ into और my मैंने heart. मसीह यीशु को कबूल किया। I said, Jesus, come into my heart. मैंने मसीह से कहा कि तू मेरे दिल में आ। I believe that you died on the cross for me. मैं ईमान रखता हूँ कि तू सलीब के ऊपर मरा। I believe that you shed your blood on the cross for me. मैं ईमान रखता हूँ कि तूने सलीब के ऊपर अपना लहू बहाया। Wash me with your blood. अपने लहू से मुझे धो दे। I prayed the sinner's prayer. मैंने एक गुनाहगारों वाली दुआ की। A miracle happened. एक मौजज़ा हुआ। I got peace. मैंने अपने अंदर सुकून महसूस I किया। could not understand it, मैं इसको समझ नहीं सकता but I था, was so happy. लेकिन मैं बहुत खुश था। Then the vehicle stopped. और फिर गाड़ी जो है वो रुकी। I jumped out of the vehicle. मैं गाड़ी में से छलांग मार के उतरा I ran home. और मैं अपने घर की तरफ I went दौड़ा and knocked on the door. और मैंने अब दरवाजा जो है अपना नॉक किया। My wife came and opened the door for me. मेरी वाइफ जो है आई और उसने मेरे लिए I दरवाजा खोला stood there looking at her. और मैं वहां पे खड़ा था और उसको देख रहा था। She said, "Why are you staring at me like that?" उसने कहा कि आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? I said, "Lily, you look pretty today." मैंने उससे कहा कि लिली आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। And she was frightened. और वो बहुत डर गई। She thought I am drunk. उसने ये सोचा कि शायद मैंने फिर शराब पी है, Because I never said that in 5 years' time. क्योंकि मैंने 5 साल से कभी भी ऐसे अपनी वाइफ को नहीं बोला था। She said, "Are you drunk?" उसने मुझसे पूछा कि आपने आज फिर पी है? I said, "No, I accepted Jesus Christ as my Savior." मैंने उससे कहा कि नहीं, मैंने मसीह यीशु को अपना जाती निजात दहिंदा कबूल किया She है। said, "No, it cannot happen." उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। I know that God can change even a rock, but I don't think God will change you. उसने ये कहा कि मैं ये जानती हूँ कि खुदा जो है वो पत्थर को तब्दील कर सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं। I said, "No, it is the truth." लेकिन मैंने उससे कहा नहीं, ये बिल्कुल सच I है। entered the house. मैं अपने घर में गया। Both of us holding our hands together, we invited Jesus into our hearts, also into our house. हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर गए और हमने मसीह यीशु को अपने घर में अपने दिलों के अंदर जो है दावत दी। I was so happy. मैं बहुत खुश था। Lily said, "I'm going to fix the dinner for you." और मैंने लिली ने लिली बोली। से कहा कि मैं जो है वो No, लिली बोली मेरे से कि वो जाके डिनर बनाएगी। कि वो जो है डिनर तैयार करेगी। I said, "Let me go and talk about Jesus to somebody. I'm so happy." तो मैंने कहा कि मैं जो है वो कुछ और लोगों को जाके मसीह यीशु के बारे में बताऊंगा। She said, "It is 10 o'clock. उसने ये कहा कि ये 10 बज गए हैं, All our neighbors are sleeping." कि तमाम जो इर्द गिर्द के लोग हैं सब सो चुके There हैं। was no electricity at that time in that village. उस वक्त उस गांव में जो है बिजली नहीं हुआ So करती। everybody will go to sleep at 8 o'clock. सो हर कोई जो है वो तकरीबन 8 बजे सो जाया करता I था। said, "We have a private, एक सिपाही है नजदीक वाला घर में. I can go and talk to him about Jesus." तो मैंने उससे कहा कि मैं पड़ोसी के पास जाके बोलेंगे. पड़ोसी के पास जाके उसको जीसस के बारे में बताऊं। I went and knocked on the door. मैं गया और मैंने दरवाजे को नॉक किया। He said, "Who is that?" He's sleeping. He said, "Who is that?" वो सो रहा था और उसने पूछा कि कौन है बाहर? I said, "This is Havildar. Sergeant Varghese opened the door." मैंने उसे कहा कि हवलदार जो है हवलदार वर्गीस है, आप दरवाजा खोलो। He said, "Is it very urgent?" उसने कहा कि क्या कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम I है? said, "This is very urgent. Open the door." मैंने उससे कहा कि बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही जरूरी He काम है। opened the दरवाजा- door. उसने दरवाजा खोला। I went inside. मैं अंदर गया I talked to him about what happened to me. और मैंने उससे जो मेरे साथ हुआ था मैंने उसके साथ बयान किया। He said, "Sergeant, go home and sleep. उसने कहा कि जाओ घर पे और जाके सो जाओ। Tomorrow morning everything will be all right." He thought I'm drunk. उसने ये कहा कि कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये समझता था कि शायद मैंने शराब पी हुई है। But next day I was worse. लेकिन अगले दिन मैं इससे भी ज्यादा I wanted to talk about to somebody. मैं चाहता था कि मैं दूसरों से
किसी ना किसी से बात करूं इस I बारे में। went out and talked to people what happened to me. मैं बाहर निकला और मैंने लोगों से ये बातें करना शुरू की। When I went to the office, I talked about Jesus to the people. जब मैं ऑफिस में था तो मैंने अपने कोलीग्स के साथ मसीह के बारे में बात करना शुरू की। My second point to you, मेरा दूसरा पॉइंट आपके लिए ये है if you are saved, you must talk about Jesus to somebody every day. कि अगर आप सेफ हैं, अगर आप निजात याफ्ता हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप दूसरों को भी जो है ये This is a बताएं। message for this church, a prophetical message. ये इस चर्च के लिए प्रोफेटिकल मैसेज है। Talk about Jesus to somebody every day. आप हर रोज जो है किसी ना किसी से मसीह के बारे में बात करें। Talk face to face. आप फेस टू फेस बात करें। Take your mobile and talk to somebody about Jesus. आप मोबाइल पे किसी ना किसी से बात करें जीसस के बारे में। Send a text message to somebody about Jesus. टेक्स्ट मैसेज के जरिए से आप जीसस के बारे में लोगों से मैसेज भेजें। I know you have restriction in this country, मैं ये जानता हूं कि इस मुल्क में आपके ऊपर बहुत सी पाबंदियां हैं, but still you can talk about Jesus. लेकिन फिर भी आप मसीह के बारे में बात कर सकते हैं। If all of you will talk, do you know what? Talk about Jesus to somebody. Do you know what is going to happen in this year? अगर आप में से हर कोई जो है जीसस के बारे में किसी ना किसी से बात करता है, तो क्या आप जानते हैं कि इस साल में क्या हो सकता है? You have 7 more months in this year. 7 more months. आपके 7 पास महीना बाकी तकरीबन है. 7 महीने और बाकी हैं। Do you know what will happen in 7 months time? Do you know what will happen in 7 इन months 7 time? महीनों में आपको पता है कि क्या हो सकता है? You can double. 2 गुना हो सकता है. You can double. आपको जो है वो Holy Spirit is inspiring me to tell you that you can double. पाक रूह मुझे ये हिदायत कर रहा है कि मैं आपसे बताऊं कि ये डबल होगा। Pastor, take a printout, double, पास्टर आप एक प्रिंट आउट लें और लिखें डबल, and give to everybody. और वो हर एक को दे दें। Paste it in your bedroom. अपने आप बेडरूम के पास उसको Paste लगाएं, it on the sitting room. अपने सिटिंग रूम में उसको लगाएं, And say every day, we are going to double. और आप ये हर रोज जो है वो दुआ करें कि हम डबल होंगे, We are going to double. हम डबल होंगे। Say it every day, we are going to double. हर रोज जो है आप इस चीज के लिए दुआ करें कि हम जो है वो दुगना बढ़ेंगे। You can double. आप जो है वो डबल हो सकते हैं। I started to talk about Jesus. जैसे ही आप मसीह के बारे में I बात started to talk about Jesus in the army. करें, मैंने जो है मसीह यीशु के बारे में बात I करना did शुरू not know what to talk. मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बात करूं। I did not know the Bible. मैं बाइबल के बारे में भी नहीं But जानता, I gave them 4 points. लेकिन मैंने 4 पॉइंट जो है वो लोगों You को can write down what you can talk about Jesus, how you can talk about आप ये Jesus. 4 पॉइंट लिख सकते हैं कि आप मसीह यीशु के बारे में लोगों को किस तरह से बता सकते Point number 1, हैं। नंबर 1, I was a sinner. मैं गुनाहगार था, Everybody knew that. हर कोई ये जानता है। I was smoking, I was drinking, I was gambling. Everybody knew हर that. कोई ये जानता है कि मैं सिगरेट पीता था, शराब पीता था और मैं जुआ खेलता था। Point number 2, दूसरा पॉइंट, I accepted Jesus Christ as my Savior. मैंने मसीह यीशु को जो है अपना निजात दहिंदा कबूल किया। Point number 3, पॉइंट नंबर 3, Jesus changed my life. उसने मेरी जिंदगी जो है वो तब्दील की। Point number 4, पॉइंट नंबर 4, what He did for me, He can do for you. जो उसने मेरे चौथा पॉइंट ये है कि जो उसने मेरे साथ किया वो आपके साथ भी करेगा। Whatever Jesus has done for you, tell others. जो भी मसीह यीशु आपके साथ करता है वो दूसरों को बताएं। Your salvation, आपकी जो your निजात है, healing, आपकी your शिफा, job, your visa, whatever He is doing, tell others. आपका जो वीजा, आपकी जॉब, जो भी मसीह यीशु आपके लिए करता है, आप दूसरों को बताएं उसके बारे में। 3 months passed. 3 महीने पहले, When I was in the army, 3 months passed after my salvation. मेरी जो निजात का जो एक्सपीरियंस है उसके 3 महीने बाद, It was the winter season, Christmas ये season. तकरीबन सर्दियों का मौसम था। I was sitting on a rock. मैं एक चट्टान के ऊपर बैठा था। Can you give me a chair, please? Oh, I told you I'm getting aged. Here it is, Pastor. I'm getting aged, so you will forgive me if I'm going to sit down. माफी दे दोगे? मैं थोड़ा कुर्सी में बैठूं? मेरे बुजुर्ग, I'm only 74. मैं सिर्फ 74 साल का हूँ। I never get tired.
मैं कभी भी थकता नहीं। So I will take my wife and go through the mountains of Kashmir. सो मैं अपनी वाइफ को साथ लेता हूँ और मैं पहाड़ों, कश्मीर के जो पहाड़ हैं, चोटियाँ, उनके ऊपर जाता I हूँ। will sit on a rock. मैं पहाड़ चट्टानों के ऊपर बैठता My हूँ wife will sit next to me. और मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ बैठती है। We will sing one or two songs. हम एक या दो गीत गाते हैं And then I will say my short prayer. और फिर मैं अपनी एक मुख्तसर सी दुआ करता हूँ। I will put my hand around Lily's shoulders. मैं अपने जो हाथ है वो जो सिपाही हैं, Baby, मेरा बीवी का कंधे पर रख देंगे. शोल्डर, Indians don't do that. मैं अपनी जो वाइफ है उसके शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता हूँ। Indians don't do that. इंडियंस जो है ऐसा नहीं करते। We are good people. But I had been watching some American Hollywood movies. इंडियंस जो है ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ अमेरिकन जो लोग हैं वो इस तरह करते हैं, स्पेशली मूवीज के जो लोग। So I put my hand around her shoulders. सो मैंने अपना हाथ अपनी I बीवी के said जो my है कंधे small के ऊपर- prayer. मैंने अपनी छोटी सी दुआ की। Lily started her long, beautiful prayer. और लिली ने जो है वो अपनी जो है लंबी जो है वो दुआ शुरू की And I opened my eyes and I started to worship God. और मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने खुदा की प्रस्तुति करना शुरू की। And I saw a fire. और मैंने जो है आग देखी, And I saw another fire. मैंने एक और आग I देखी। saw 50, 60, 70 fires on the mountains of Kashmir. तकरीबन 50, 60, 70 के करीब जो है वो मुख्तलिफ जगह पे आग देखी। And God spoke to me. और खुदा ने मुझसे कहा, I said, Lily, do you see those fires? मैंने लिली से कहा कि क्या तुम ये आग देख रही हो? She said, we see them every day. उसने कहा कि मैं हर रोज देखती हूँ। I said, that is not what I am talking. उसने कहा कि मैं इसके बारे मैंने उससे कहा कि मैं इस बारे में नहीं I'm talking about the people living behind every fire. मैं जो है मैंने उससे कहा कि मैं ये बता रहा हूँ कि वो लोग जो इस आग के पीछे रह रहे हैं, There are people living on the mountains. वहाँ पे लोग हैं जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। You cannot see them in the daytime. आप उन्हें दिन के वक्त जो है देख सकते हैं, But in the evening, you are seeing their cooking fire. लेकिन रात के वक्त आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि वो आग के ऊपर कुछ पका रहे हैं। If it is not raining, they will be cooking the food in the open. If it is not raining, they will be cooking the food in the open. अगर वहाँ पे बारिश नहीं है तो वो खुली जगह पे कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं। And I said, Lily, look at those fires. और मैंने लिली से कहा कि इन आग है उसकी तरफ देखो। There is a family of 10, 15 people behind every fire. उस तकरीबन 10 और 15 लोगों का जो एक फैमिली है, एक खानदान जो है वो इस आग के पीछे है। I said, we are going to celebrate Christmas next week. मैंने उसे कहा कि अगले महीने हम जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। But those people living there, they never heard there was a Christmas. तो लेकिन ये लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने कभी ये नहीं सुना कि क्रिसमस है। She said, how they will hear? उसने कहा कि कैसे ये सुनेंगे Who will climb those mountains? कि इन पहाड़ों के ऊपर कौन जाएगा। I said, I am very healthy, let me go. मैंने उसे कहा कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे जाने दे। She was frightened. वो बहुत डर गई। She said, if you will go, somebody will kill you. उसने ये कहा कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो कोई आपको मार देगा। Don't go. उसने कहा कि नहीं जाना। I said, Lily, the world had been celebrating Christmas for the last 2000 years. मैंने उसे कहा कि दुनिया जो है तकरीबन पिछले 2000 साल से क्रिसमस जो है वो मना रही है। But they never heard there was a Christmas. लेकिन इन्होंने आज तक नहीं सुना कि यहाँ क्रिसमस है। How many hundreds of years more they have to wait to hear for the first time that there was a Christmas. और कितने और 100 साल जो है इन लोगों को चाहिए कि ये कहें कि हमें अभी तक क्रिसमस का नहीं पता। I took her hand in my hand. मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया I started to squeeze it. और मैंने उसको जो है पकड़ा। And I said, Lily, should not they hear at least once there was a Christmas? That is all I asked. Should not they hear at least once there was a Christmas? Should not they hear at least once? क्या कम से कम एक बार नहीं सुनना है कि एक क्रिसमस दुनिया में हुआ है? She said, yes, they should hear. If you will go, I will come with you. और उसने मुझसे कहा कि अगर आप जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। And looking at those cooking fires of Kashmir, we decided to become pioneer missionaries for those who never heard there was a Christmas. और उन जो है वो
पहाड़ों के ऊपर जो खाना पकाने वाला जो धुआं था, आग थी, वहाँ पे हम पहले मिशनरी थे जो जिन्होंने जाके मसीह के बारे में बताना शुरू किया। So both of us decided to leave our jobs. So, Both of us decided to resign our jobs. हमने सबसे पहले ये फैसला किया कि अपनी नौकरी से रिजाइन करेंगे। I resigned my army job. मैंने अपनी आर्मी की नौकरी से She रिजाइन resigned her teacher's किया और job. उसने अपनी उस्तानी की जॉब से रिजाइन किया। I had money in the bank. मेरे पास बैंक में कुछ पैसे I was थे। going to buy some land and a house. I was going to buy land and house. मैं कुछ घर और कुछ जगह जो है वो खरीदना चाहता था। And so I had money in the bank. सो मेरे पास कुछ पैसा था। I thought, what should I do with the money? मैंने ये सोचा कि मैं इस पैसे का क्या करूं। God gave me an inspiration. और खुदा ने मुझे एक रुझान दिया When St. Thomas came to India, how much money he had? कि जब St. Thomas. सेंट थॉमस जो है वो इंडिया में आए तो उनके पास कितना पैसा था। Which American mission was sending him a check every month? जो कौन सी अमेरिकन मिशन थी जो उसको हर महीने चेक भेज रही थी। I said, Lord, there was no mission. मैंने खुदा से कहा कि खुदाया कोई ऐसी मिशन नहीं थी। Then how did he come? सो किस तरह से वो यहाँ पे आया? He trusted God. उसने खुदा के ऊपर भरोसा किया। I heard a voice in my heart. मैंने अपने दिल में एक आवाज सुनी। Jesus Christ is the same yesterday, today and tomorrow. मसीह यीशु कल, आज और हमेशा यकसा है। And if he is the same way he took care of St. Thomas, he will take care of me. और चूंकि मसीह यीशु आज कल और हमेशा यकसा है, इसीलिए जिस तरह से उसने सेंट थॉमस की जो है हेल्प की, इसी तरह से वो मेरी भी मदद करेगा। So I gave away all the money I had. सो मैंने जो भी मेरे पास पैसा था वो सब कुछ मैंने दे I दिया। gave to different Christian organizations. मैंने तकरीबन जो है मुख्तलिफ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को अपना सारा पैसा दे And with दिया। an empty pocket, I went to the mission field. और खाली जेब के साथ मैं मिशन के ऊपर काम करने के लिए शुरू हुआ। When I reached my promised land, my mission field, I had 42 rupees in my pocket. जब मैं अपने प्रॉमिस लैंड जो मिशन है उसके ऊपर काम करने के लिए शुरू चला, उस वक्त मेरे पास 42 रुपए थे। I rented a room for 40 rupees for a month. और मैंने एक रूम जो है वो किराए पे लिया जिसका रेंट था 40 रुपए। And I purchased a liter of milk for 2 rupees. और मैंने 2 रुपए का जो है वो दूध लिया। And then I was broke. मेरा जेब खाली हो गया। और उसके बाद जो है मेरी जेब खाली हो गई। I fell flat on the concrete floor of the room. और मैं जो है वो फर्श जो है उसके ऊपर खाली जो है लेटा था। And I prayed to God. और मैंने खुदा से दुआ की। If you will give me money, I will eat and live. मैंने खुदा से दुआ की कि अगर तू मुझे पैसा देगा तो मैं जिंदा रहूंगा और मैं तेरा काम करूंगा। Or I die here. और मैं यहाँ पे मर। I will not go to South India. मैं साउथ इंडिया में नहीं I will not go to Bombay. मैं बॉम्बे में नहीं I will जाऊंगा। not go to North East India. मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं जाऊंगा। I will live in Kashmir and die. मैं कश्मीर में ही रहूंगा और यहीं पे मरूंगा। I did not die, मैं नहीं मरा, but I suffered. लेकिन मैंने तकलीफें बर्दाश्त I की। saw my wife walking with torn clothes. मैंने देखा कि मेरी वाइफ जो है वो फटे कपड़ों के साथ चलती। I saw my son becoming unconscious 3 times. मैंने अपने बेटे को 3 दफा जो है वो बेहोश देखा। But I had the privilege to baptize 18 people on the 6th month. लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैंने 6वें महीने के अंदर 18 लोगों को जो है वो On the 7th month, again 18 people. और 7वें महीने में फिर से 18 लोग। And the next month, 18 people. और फिर जो है अगले महीने 18 लोगों। And next month, 56 people. और उसके अगले महीने 56 लोगों को। I got the largest church of Kashmir. और मैंने चर्च कश्मीर में एक बहुत बड़ा चर्च जो है वो हासिल किया। But then I had a problem. और फिर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई। One day 5 believers came to me. एक दिन 5 लोग जो हैं वो मेरे पास आए। And they said, you are a good preacher. We would like to learn the Bible from you. उन्होंने कहा कि आप एक बहुत अच्छे प्रीचर हैं, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। Start a Bible school. आप बाइबल स्टार्ट। We are coming to your home to stay with you. हम आपके घर पे आएंगे और आपके साथ रहेंगे। I was in trouble. मैं मुश्किल में था। They are coming to stay in my house. कि वो लोग जो है वो मेरे घर पे आ रहे हैं रहने के लिए। My house is a 12 by 12 feet room. मेरा जो घर है वो 12 बाय 12 फुट का एक कमरा है। That is my living room, dining room, toilet room, bathroom, every room. और वही मेरा बेडरूम है, टॉयलेट रूम है, लिविंग रूम, सब कुछ वही है। What should I tell them? तो मैं उनसे क्या कहूँगा? Should I tell them no, I don't have the facility, I don't have the money?
क्या मैं उनसे ये कहूँगा कि मेरे पास वसाइल नहीं है और No, I could not do that. मैं ऐसा नहीं कर सकता। I said, come in. मैंने उनसे कहा कि आप आओ। They came into our house. वो हमारे घर में आए। All the women folk of our village, they were looking at my wife and smiling. उस गांव की जितनी भी औरतें हैं वो मेरी बीवी की तरफ जो है वो देख के और वो हंसती थी। They were saying, what is happening in your house in the night? वो ये कहती थी कि आपके घर में रात को क्या है। One woman and 6 men. एक औरत और 6 आदमी इस घर में They रहते थे। laughed. वो उसके ऊपर हंसते थे। But I taught everything I knew to these 5 men. लेकिन मैंने हर चीज जो है वो उन 5 आदमियों को जो है वो सिखाई। I did not know much, so my Bible school was over in 3 months' time. सो मैं ज्यादा बाइबल के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए 3 महीने के अंदर बाइबल स्टडी जो है वो खत्म हुई। I loosed all these men all over North India. I sent them all over North India. और उसके बाद मैंने इन आदमियों को नॉर्थ इंडिया में सारे एरिया में भेज दिया। Do you see these red dots? क्या आप ये लाल निशान देख सकते हैं? These are our mission headquarters, not our churches, mission headquarters. ये हमारे मिशन के हेडक्वार्टर्स हैं, चर्चेस नहीं हेडक्वार्टर्स। Today we have planted 8,000 churches. आज हमने तकरीबन 8,000 चर्चेस जो हैं वो शुरू Last किए। year we baptized 17,500 people. पिछले साल हमने 17,500 लोग जो हैं उनका बपतिस्मा Last किया। year we planted 741 new churches. और पिछले साल हमने 700 और 41 चर्चेस जो हैं वो नए ओपन किए। How it happened? ये कैसे हुआ Let me tell you. मैं आपको बताऊंगा। In 1979, a man came from South India. 1979 में एक आदमी जो है वो साउथ इंडिया में आया। South India से आया. साउथ इंडिया से आया। He is an American. वो अमेरिकन था। His name is Dr. Roger Hedlund. उसका नाम Roger रॉजर Hedlund. हेडलर था। And he came and taught us about targeting and goal setting. उसने वो आया और उसने हमें बताया Targeting, goal setting. I never heard that before. मैंने इसको कभी भी पहले नहीं सुना था। Nishana Banao. I never heard it before. मैंने निशाना बनाओ इसको पहले कभी भी नहीं सुना। But when I heard it, I thought that is a good idea. लेकिन जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है। So when he finished, I stood up and talked to my pastors. सो जब वो खत्म हुआ तो मैं उठा और मैंने अपने जो पास्टर्स हैं उनको बताया। We were a small mission, हम एक छोटी सी मिशन थे, just a baby mission. सिर्फ एक बेबी मिशन की तरह। 36 people only. उसमें 36 लोग थे। We had about 70 small churches. और हमारे पास 70 छोटा छोटा कलीसिया था. छोटे छोटे जो चर्चेस थे। I stood up and I preached to them. मैं खड़ा हुआ और मैंने उनको सिखाना I शुरू said, किया। let us put a target. मैंने उनसे कहा कि हम अपना जो है टारगेट एक बनाते I हैं। said, we are going to have 200 churches in 10 years. मैंने उनसे कहा कि हम एक अपना टारगेट बनाते हैं कि अगले 2 साल में हम नहीं 10 साल. 10 साल में हम 200 चर्च जो है वो बनाएंगे। The preacher who taught us targeting and goal setting, he said like this, oh no, it cannot happen in North India. So वो टीचर जिसने हमें बताया था कि टारगेट निशाना जो है किस तरह बनाना है, वो उसने जब सुना तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। He is a church growth expert of India. उसने कहा कि जो चर्च की जो ग्रोथ है उसका expert है वो But he said it cannot happen in North India. लेकिन उसने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। 200 churches in 10 years, it cannot happen. 10 साल में 200 चर्च ऐसा नहीं हो सकता। He was right. वो बिल्कुल ठीक था। It did not happen in 10 years. ऐसा 10 साल के अंदर नहीं हुआ। It happened in 5 years. ये 5 साल के अंदर हुआ। हालेलुया। Put a target to double. आप अपना टारगेट जो है वो मखसूस करें, फिक्स। Put a target to double in these 7 months. अपना टारगेट जो है वो रखें कि आपने डबल करना है 7 महीनों के अंदर। We reached our target in 5 years. हमने जो अपना टारगेट है वो 5 साल के अंदर कवर किया। Then I put another target और फिर हमने एक और टारगेट for the next 5 years, अगले 5 साल के लिए, which we reached in 4 years' time. जिसको हमने 4 साल के अरसा में कवर किया। Then I said we are going to have 2,000 churches by 2000.
फिर हमने कहा कि हम 2000 चर्चेज जो हैं 2000 साल तक पूरा करेंगे. 2000 साल तक पूरा करेंगे. It did not happen by 2000. It did not happen in 2000. ये 2000 में जो है ऐसा नहीं हुआ, But it happened by 1999. लेकिन ये 99 में जो है ऐसा हो गया. Then I said, God, you must give me another target. और फिर मैंने खुदा से कहा कि खुदाया तू मुझे एक और टारगेट दे. I said, God, give me a big target. और खुदा ने मुझे कहा कि खुदाया तू मुझे एक बड़ा टारगेट दे. An unreachable target, unreachable without your help. ऐसा टारगेट जो जिसको कवर करना जो है वो बहुत मुश्किल हो और कोई भी ना कर सके. So in the month of April 2000, I went on fasting and prayer. अप्रैल के महीने में मैं रोजे में था और दुआ कर रहा था. God asked me to read the book of Joshua. और खुदा ने मुझे कहा कि यशुआ की किताब पढ़. I read the book of Joshua and Ephesians and the book of Acts, 3 books every year. और मैंने यशुआ जो है और एफिशिएंस और अमल की किताब. अमाल की किताब जो है वो पढ़ी. And I read chapter 1. और मैंने इसका पहला चैप्टर पढ़ा. Oh, बहुत very good. बहुत अच्छा था. Wherever your foot will touch, you will get it. उसमें लिखा था जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह तुझे दे दूँ. But God was silent. लेकिन खुदा खामोश रहा. I read chapter 2, 3, 4, 5, 6. मैंने दूसरा बाब, तीसरा बाब, चौथा बाब, पांचवा, छठवां बाब पढ़ा. When I was reading chapter 6 verse 4, Acts chapter 6 verse 4. और जब अमाल उसका छठवां बाब, 6 बाब उसकी उसका 4वां चौथी आयत आयत. जो है वो मैंने पढ़ी. And God said, Varghese, read that again. और खुदा ने मुझे कहा कि वर्गीस इस आयत को पढ़. I read, but I did not get a message. मैंने उसको पढ़ा लेकिन मैंने उससे कोई मैसेज हासिल नहीं किया. God said, read it again. खुदा ने मुझे कहा कि दोबारा से Read इसको it पढ़. again. दोबारा से पढ़. Then I saw something. और फिर मैंने एक चीज देखी. Can you put it on the screen? Book of Acts chapter 6 verse 4. 6 verse 4. Acts 6 4. रसूलों के अमाल उसका 6 Oh, बाब. sorry. Joshua 6 4. I'm sorry. Joshua 6 4. Ah, wonderful. And 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark, but the 7th day you shall march around the city 7 times. I read it several times, then I saw it is written 7, 7, 7, 7. That is 7,777. And God said, Varghese, if you dare to believe in me, you can have 7,777 churches. इसमें यूं लिखा है और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले और 7वें दिन तुम शहर के चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके. इसमें मैंने ये दिखा कि 7 दफा यानी 7,770 और 7 इसका मुझे जो है वो अदद मिला. And God said, you can have 7,777 churches. खुदा ने मुझे कहा कि आप जो है 7,777 चर्चेस जो है वो शुरू कर सकते. I was frightened. मैं बहुत डर गया From where will I get the money to support these pastors? कि मैं कहाँ से इतना पैसा हासिल करूंगा कि इन चर्चेस को सपोर्ट कर सकूं. How I can have church buildings? मैं किस तरह से चर्च की बिल्डिंग्स जो है वो बनाऊं. How I can buy the Bibles? मैं किस तरह से Bicycles, motorcycles. Oh God, I said, no, God, don't give it to me. मैंने फिर खुदा से कहा कि खुदाया ये मुझे नहीं दे. It is too big for me. ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज. Give it to Assemblies of God. किसी असेंबलीज ऑफ गॉड को Give it to ऐसा Methodist or Presbyterian, because they have American churches that can support them. किसी प्रेस्बिटेरियन या किसी अमेरिकन चर्च को दे दे क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो इतना काम कर I सकते. said, God, I need a big target, but not this big. This is too big मैंने for me. खुदा से कहा कि खुदाया मुझे बड़ा टारगेट चाहिए लेकिन इतना भी बड़ा टारगेट So I नहीं चाहिए. continued to read the Bible. लेकिन मैंने जो है बाइबल को पढ़ना जारी रखा. Verse 5. 5वीं आयत It is in your Bible. वो आपकी बाइबल में है. Verse 5. 5वीं आयत. It shall come to pass. ये हो जाएगा. और यूं होगा. उर्दू में नहीं होगा ना. In English it is written there. It shall come to pass. ये हो जाएगा. ये हो जाएगा. When I read that, I stood up. I was wearing a kurta like this. I stood up on my feet.
जब मैंने ये पढ़ा तो मैं एक कुर्ता पहने हुए था और मैं खड़ा हो गया I started to dance. और मैंने डांस करना शुरू कर दिया पंजाबी है, नाश्ता है, कुत्ता है. I started to dance. और मैंने डांस करना शुरू कर दिया। I said, Lord, don't give to the Methodists, don't give to the Baptists, don't give to the Assemblies of God. Give it to me. I will. मैंने खुदा से कहा किसी मेथोडिस्ट चर्च को या किसी अमेरिकन चर्च को नहीं, बल्कि तू मुझे दे ताकि मैं जो है Because वो it will come to pass. क्योंकि ये हो जाएगा, It will not kill me. ये मुझे जो है वो मारेगा नहीं, It is not going to hurt me. It will come to pass by itself. I said, Lord, I will take it. ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि ये हो जाएगा। So I said to my pastors, we are going to have 7,777 churches by 2010. सो मैंने अपने पास्टर से कहा कि हम जो है 7,777 चर्चेज जो है 2010 तक जो है वो करेंगे। We did not get 7,777 by 2010. हमने 2010 तक जो है 7,777 चर्चेज नहीं हासिल की, But we got it by 2012. लेकिन हम जो है वो 2012 तक जो है इसको करेंगे। Right now we got more than 8,000 churches. अभी तक हमने 8,000 चर्चेज जो है वो शुरू की। So put a target that you are going to double this year. सो अपना एक टारगेट निशाना बनाएं कि आपने इस साल में डबल करना है। You know, when God created man, what did God say to him? क्या आप जानते हैं कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने क्या कहा? Did he say go and double? क्या उसने कहा कि जाओ और डबल हो जाओ? Multiply. So I am asking you, go and multiply. सो खुदा ने ये नहीं कहा कि आप डबल हो, बल्कि खुदा ने कहा कि आप मल्टीप्लाई हो। It is not a hard job to multiply. ये मुश्किल नहीं है कि आप जो है It मल्टीप्लाई is not a hard job to double. ये मुश्किल नहीं है कि आप डबल हो। Even if every one of you is going to win one person in 7 months, you can double, you can triple, you can go several times. अगर हर multiply. इंसान ये 7 महीनों के अंदर जो है दूसरों से बात करेगा तो वो डबल, ट्रिपल या 4 गुना बढ़ सकता है। God is going to help you. खुदा आपकी मदद करेगा। With the help of God, you can do it. खुदा की मदद के साथ आप ऐसा So करें। I want to see this church double, and I would like to get the good news by 31st of December that you double. तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चर्च जो है वो डबल हो और 31 दिसंबर तक जो है मैं ये गुड न्यूज़ हासिल करूँ कि आप लोग डबल से भी ज़्यादा। So I am giving this prophetic message to you, double, सो मैं ये एक double, double, देना चाहता हूँ double, कि आप दुगना हो, double, दुगना, double. डबल। You can have 2 services in the morning, 2 services in the evening. हालेलुया, You can. हालेलुया। God is with you. खुदा आपके साथ है, ऐसा God is with you. खुदा आपके साथ है, God is with you. खुदा आपके साथ है। Let me tell one story, then close. मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद मैं I क्लोज। will come back another time and I will preach a message, but this is a prophetical message. You must double. That is the will of God. That is the passion of God. Here is the story. This really happened in North India. ये एक स्टोरी है जो नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है। There is a river called Ganges, यहाँ पे starting from here, going like this. दरिया है जो गेंजस कहलाता है, Ganga. गंगा। And a bus was going in the summer about 50 years back. और एक बस जो है तकरीबन 50 साल पहले जो है वो I read it in the newspaper. मैंने ये न्यूज़पेपर में I पढ़ा was था। not saved at that time. उस वक्त मैं जो है निजात I was in the याफ्ता army as a sinner. नहीं। मैं उस वक्त आर्मी में था और एक गुनाहगार था। This bus was going through the mountains. ये बस जो है पहाड़ों के अंदर से होकर गुजर रही थी And there is the river deep down, about 20,000 feet down. और तकरीबन 20,000 जो है वो गहरा वहाँ पे And आई थी। it was summer and daytime. और ये गर्मियों का मौसम और सुबह का वक्त था। Everybody is sleeping. हर कोई जो है वो सो रहा था, Everybody is sleeping. हर कोई सो रहा था। And the driver is driving with great care. और ड्राइवर जो है वो बड़े ध्यान से गाड़ी चला Then रहा था। all of a sudden a calf came and crossed the road. और एकदम से जो है एक बछड़ा जो है गाय वो का आया, बछड़ा। वो सामने आया और बस को क्रॉस किया। The driver was thinking what to do. ड्राइवर ये सोच रहा था कि वो क्या करे, What to do? क्या करे। A calf in front. एक बछड़ा जो है वो सामने है। For a Hindu, a cow is their God. एक हिंदू के लिए एक जो गाय है या बैल है, He had a thought वो what एक खुदा है। he had a thought what to do. उसके अंदर ये ख्याल आया कि वो क्या करे। If you'll go forward, there was no time even to put the brakes. The calf was so near.
उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो ब्रेक जो है लगा सके, क्योंकि वो बछड़ा जो है वो बहुत करीब था। He had an option उसके पास एक ऑप्शन थी to hit the cow and kill it, कि वो उस गाय को जो है वो टक्कर मार दे और उसको मार दे, or turn the bus and take it to the ditch. या अपनी बस को मोड़े और जो खाई है उसके अंदर गिरा दे। 20,000 feet down. 20,000 फुट गहरी। He knew he will die and all the 72 people in the bus will die. उसको ये पता था कि अगर वो मरा तो 72 लोग जो हैं वो उसके साथ मरेंगे। He had to make a decision so fast. उसको जो है ये बहुत जल्द फैसला करना था Kill the cow or kill all the 72 कि वो people. उस गाय को मारेगा या 72 लोगों को, 72 लोगों को। That good Hindu made a decision. That good Hindu made a decision. एक हिंदू जो है वो अच्छा हिंदू था, उसने अच्छा फैसला एक किया. अच्छा हिंदू था, उसने एक अच्छा फैसला किया। He saved the calf. उसने गाय को बचाया He turned the bus, और उसने बस को जो है वो मोड़ा went into the river, and all the 72 people were dead. और उस दरिया के अंदर गिर गए और 72 लोग जो हैं वो मर गए। Why the world is not evangelized? क्यों जो दुनिया है उसको इवेंजलाइज, Why India is not evangelized? क्यों इंडिया में इवेंजलाइज नहीं? Because we have a golden calf in our heart. क्योंकि हमारे अंदर जो है वो एक सुनहरा, Just like the movie we saw, just like the video clipping we saw. जिस तरह से हम वीडियो क्लिप देखते हैं, We want to save our golden calf. We want to save our हम golden जो है calf. वो गोल्डन काफ जो है We don't want to give money. उसको बचाना चाहते हैं। We don't want to give money. We don't want to give money. हम जो है वो पैसा नहीं देना चाहते, We don't want to go. हम जाना नहीं चाहते, We don't want to give our child. हम अपने बच्चे जो है वो नहीं देना चाहते। For us, our golden calf is more important than the perishing millions. हमारे लिए जो सोने का जो बछड़ा है वो ज्यादा कीमती है लोगों से। Let's close our eyes. अपनी आंखों को बंद करेंगे। Do you have a golden calf? क्या आपके अंदर भी वो सोने का बछड़ा है? Are you willing to sacrifice that golden calf? क्या आप तैयार हैं कि आप उस सोने का जो बछड़ा है उसको कुर्बान कर दें? And say, Lord, I'm sacrificing my golden calf so that the people who are perishing, they may be saved. क्या आप बोलने के लिए तैयार है कि खुदावंद मेरा गाय का बछड़ा, मेरा सोना का गाय, मेरा मूर्ति, मेरा इच्छा मैं कुर्बान दे रहा हूं ताकि जो हलाक हो रहा है वो बच जाए. Can we sacrifice our ego, our personal interest? क्या हम अपनी अना को और अपनी ईगो को जो है वो कुर्बान कर सकते हैं So that the perishing millions may be saved. सो करोड़ों इंसान जो है वो बच सकते हैं? Shall we pray? हम दुआ करेंगे। Shall we say, Lord, I will do whatever I can do so that at least one person will be saved. हम दुआ करेंगे कि ऐ खुदाया हम कम से कम एक आदमी को जो है वो जरूर जो है वो बताएं, I will win one soul at least in this year. और एक जो है रूह को कम से कम यहाँ पे तेरे हुजूर में लेके आएंगे। When one person is saved, I will go to the next house and I will lead another person to the salvation. और एक आदमी अगर एक सोल जो है वो रूह बचेगी तो हम एक और रूह के पास जाएंगे, Then I will go to the next house and I will lead another person to salvation. और उसके बाद फिर मैं एक और घर में जाऊंगा और उसको भी जो है वो बचाऊंगा। I am willing to kill my golden calf so that the perishing millions will be saved. मैं ये चाहता हूँ कि वो जो सोने का बछड़ा है उसको मैं कुर्बान करूँ। Let's pray. दुआ करेंगे। Heavenly Father, I pray that there are several hindrances and that is why the world is not evangelized. Help us to evangelize the world. Help us to pay the price so that the perishing people, the people who are with us in the bus, the people who are with us in the office, the people who are with us in the next building, the people who are with us in the school or working place, they may come to the salvation experience. They must not go to hell because we are not willing to go and talk to them about Jesus. Help us to go. Help us to win souls. In Jesus' name we pray. Amen.